So good morning, friends. Once again, this is Professor Vikas Jain, and I am again here with you all to have some chat on English. Well, I have been getting the requests, advice, suggestions that I should make some of the videos on vocabulary also. Yes, I know. Many of you are very much aware of your campus recruitment process. You are very much aware of your communication skills, and no doubt, English vocabulary is very necessary for speaking it. As such, I personally feel that vocabulary does not mean using so many bombastic words, but yes, it matters a lot. Well, what word you are using that shows your knack over language. Yes, the very first word today, knack. Knack means your excellence, your skill, your ability to do something in very much new way or very skilled form, in proficient way. That is called a knack. 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 Hope you all are well aware with this word now. So, well, buddies, yes, today we are going to have a series on English vocabulary. It is not going to be 1 day class or 2 day class or one video or two video or four videos. Yes, I will be trying my best to give you some words those can enrich your language and you can have some new words in your pocket so that whenever you require to use them, you can utilize them anywhere, wherever you want. So let's move, I suppose, without wasting the time. Yes, let's go. So, well, buddies, we are going to have neck of vocabulary with obviously your friend, your mentor, your colleague, your you can call me anyone, whatever you want or whatever you feel. I don't want to call you students because I suppose each one who is very much aware what actually he wants to do in his life is a professional. Whatsoever the age is, it doesn't make any difference because your professionalism, your skills do not go with your age. You are mature whenever you are mature with your brain and you are ready to take the responsibility of shaping your career. So that is the reason that I'm calling you the professional. So well, knack of vocabulary with Professor Vikas Jain. So let's come for the first word. This time I'm not going to give you the words with एक वर्ड लिख दिया उसका मीनिंग बोल दिया दैट्स नो. अब कुछ नया से देखते हैं. You get a picture of the words and you just see what you find in those pictures. You just try to relate the picture and we'll get the word. A boy is sitting and a plate of food is there. आपका भी कई बार ऐसा होता होगा ना कि पिज्जा खाने की इच्छा होगी और मम्मी करेले की सब्जी बना के दे दें. You feel, oh no, I hate bitter gourd. Yes, this is the word. Abhor. The to feel repulsions or loathing for. Loathing for means किसी चीज के लिए घृणा महसूस करना. To feel repulsions or loathing for. The word is abhor. The word is abhor. I abhor this type of insulting behavior. I hate. So the word is abhor. Try to reproduce the word. कोशिश करिए कि आप इस वर्ड को रिपीट करें. You will enjoy the word, my dear. You will. I'm damn sure you will be enjoying the word. Abhor. Once again, abhor. Clear?
गुड। अब आते कुछ सिनोनिम्स पे इस वर्ड के लिए। डिटेस्ट, एबोमिनेट, लोथ, हेट, डिसलाइक। अब इन वर्ड को याद कैसे रखा जाए? सुबह सुबह कोई आपको आगे जगा दे, भोर में ही जगा दे, हाँ हिंदी वाला वर्ड ना भोर। If somebody makes you wake up early in the morning, you say no please no यार सोने दो ना। अब भोर, सुबह सुबह भोर में जगा दिया तो घृणा आ रही है उस व्यक्ति से। दैट इज अभोर, डिटेस्ट, एबोमिनेट, loathe, hate, dislike. These are some words related to the same word. Yes, one more thing that you will have to understand. Those synonyms does not mean same meaning. Synonym का अर्थ समानार्थी नहीं होता है, पर्यायवाची होता है। हो सकता कोई सिनोनिम पर्यायवाची तो हो लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ना देता हो, ठीक है? तो try to understand that synonym means the word that is used in the same sense, not exactly in the same meaning. Clear? So detest, abominate, loathe, hate or dislike. Let us go for the antonyms. Love, like, admire, enjoy. Okay, हाँ कुछ कुछ होता है। I love pizza. देखते ही और कुछ कुछ होने लगता है। I like pizza. I admire pizza. I enjoy taking pizza. Clear? But I abhor bitter gourd. I abominate to it. Clear हुआ word? चलिए फिर एक नया पिक्चर देखते हैं और उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। Oh my God, what he is writing? I cannot absolve sins. I cannot absolve sins. Sins माने पाप। Absolve माने क्या हुआ? अंदाजा लगाते हैं। मैं नहीं कर सकता, नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता। पाप तो हो ही जाते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका आज मूड नहीं होगा पढ़ने का, लेकिन हम तो जबरदस्ती पढ़ा रहे। पाप तो हो गया ना। आपके मन से सही भाई। Absolve has something different. Absolve means to get rid of, इसकी से बच पाना, to free from debt, obligation, promise or ruling. किसी ऋण से मुक्ति मिलना, किसी बंधन से मुक्ति मिलना, किसी वचन से मुक्त हो जाना, that is called absolve. प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई, मुक्त हो गए अब तो। अभी सॉल्व। His illness absolved him from attending the class. Now you must be thinking कि यार आज बीमार हो जाता, मैं कह देता कि मैं बीमार हूँ तो क्लास अटेंड नहीं करना पड़ती मुझे। हाँ, यस सर। सो जो नहीं आया उसने कह दिया मैं बीमार हूँ, और आजकल तो एक बहुत परमानेंट सा एक्सक्यूज रखा हुआ है आपके पास, कोविड, कोरोना। His illness absolved him from attending the class. उसकी बीमारी ने उसे क्लास अटेंड करने से मुक्ति दिला दी। Excuse, exempt, pardon, exonerate. Excuse, I suppose everybody knows the meaning. Excuse means माफ कर देना. Exempt means मुक्त कर देना. Pardon also has the same meaning of excuse. Clear? So then these are some of the synonyms, and let us come for the antonyms. Oblige, bind, condemn, convict और blame. अब आप कहेंगे कि सर ओबलाइज माने तो होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, मुक्त नहीं कर रहे हम आपको, आपको उसकी हम बढ़ावा दे रहे थे। डेट इज ओबलाइज, डेट इज ओबलाइज। इसलिए हमने कहा था ना, आई टोल्ड इट वेरी क्लियर दैट synonyms does not mean the same meaning, antonyms does not mean the exact opposite meaning. Synonym means the word those are used in the same sense.
Antonyms means the word those are used in the opposite sense of the word, not exact opposite meaning. Clear? Oblige, bind, condemn. Condemn of court, normally आपने मूवी में सुना होगा. अवमानना, convict, ठीक है, किसी को दोषी बना देना, blame. Got this? अब आप इससे मुक्त नहीं हो रहे, आपको हमने उसका दोषी या जिम्मेदार मान लिया, और जब आपको हमने उसका दोषी या जिम्मेदार मान लिया, तो हाउ कैन यू बी एब्सॉल्व? तो मैंने ये वर्ड सीखा था ना, एब्सॉल्व. क्लियर? गॉट दैट वर्ड? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पिक्चर. Well, students are sending me the message that okay sir, this is fantastic, thank you very much my dear. Purpose is just to make you remember the words. सिर्फ पर्पस इतना ही है कि आपको वर्ड याद हो सके और बिना किसी बर्डन के याद हो सके. क्लियर? कुछ नया करने की कोशिश कर रही है कि पिक्चर से याद कर पाए आप. थैंक यू वेरी मच. Kamini is writing, so you are great. No, I'm not great, I'm just simple. प्लीज देखो, इसी को यूज करते ना जैसे इसने भेजा. प्लीज एब्सॉल्व मी फ्रॉम दिस ग्रेटनेस. इससे मुक्त कर दो भैया मुझे इस महानता से. आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद माय सिंपलिसिटी. ओके, so let's go for the next word. Oh, what he is doing? अंदाजा लगाते क्या किया इसने यार. सभी लोग साथ में दौड़े थे, अचानक से ही आगे बढ़ गया. क्या हुआ? स्पीड अप. मूवी देखी ना, जो जीता वही सिकंदर. आमिर खान अपनी गाड़ी में, अपनी साइकिल में गियर डालता है, साइकिल अचानक से बहुत आगे चली जाती है. कैसे? एक्सेलरेट. यस, एक्सेलरेट. बड़ा आसान सा वर्ड है भाई. सभी गाड़ियां चलाते हैं आजकल और सबकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता ही है. whether it is a 2-wheeler, 4-wheeler, bike, moped, whatever so it is. Accelerate. साइंस वालों ने तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा ये वर्ड. V is equal to U plus AT. इसमें A क्या था? वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ, यस सर, गति का पहला नियम. What was that? U is equal to V. Yes sir. V plus AT. Sorry. Somebody has written sir V is equal to U plus AT. Yes, sorry. V is equal to U plus AT. यहाँ पर जो A है, that is acceleration. त्वरण. To happen or to make something happen faster. That is accelerate. आपने अपनी गाड़ी को जैसे एक्सेलरेट करते हैं या आप अपनी कार में एक्सेलरेटर में पैर रखते हैं, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग. तेजी से भागना शुरू कर देती है, उड़ना शुरू कर देती है. दैट इज एक्सेलरेट. सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? एग्जांपल लिखा है, इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट. लगातार बढ़ती जा रही, लगातार अपनी गति पकड़ती जा रही है. इन्फ्लेशन मींस मुद्रास्फीति, महंगाई. hasten, hurry, quicken, speed up, expedite. अब इस एक्सपेडाइट के लिए बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन मिलते हैं. आपको हमने जो वर्ड या जो प्रोनाउंसिएशन बोला वो सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोला है. एक कहावत है ना, जल्दी का काम शैतान का. इंग्लिश में कैसे कहते हैं उसे? हेस्ट मेक्स वेस्ट. हेस्ट मेक्स वेस्ट. जल्दी का काम अक्सर वेस्ट करा देता है, चीजों को बर्बाद करा देता है. तो हेस्टन मींस जल्दबाजी करना, हरी, क्विकन, एक्सपेडाइट, स्पीड अप. और ये सिनोनिम क्या के थे? एक्सेलरेट. एक्सेलरेट. ट्राई टू स्पीक अबाउट द वर्ड एक्सेलरेट. एक्सेलरेट. यस. Now the antonyms: slow down, retard, declerate. हाँ, कई लोग कहते हैं de-accelerate. देखो, de-accelerate बहुत सही वर्ड नहीं है. जैसे आपने
फिजिक्स में पढ़ा था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. तो रिटार्ड मीन्स स्लो अप, स्लो डाउन, सॉरी, speed up and slow down, speed up and slow down. Clear? Let's go for the next. मान्या is writing, इस आपकी पीपीटी बहुत खूबसूरत होती है. थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड की जगह या पिक्चर की जगह कुछ लिखा आ गया है. हाउ टू एक्चुअली अकम्प्लिश योर गोल्स. प्रवचन नहीं दीजिए ना, सुन के परेशान है कि कैसे अपने गोल्स को पूरा करोगे. अकम्प्लिश, तो अगला वर्ड यही है, अकम्प्लिश. अब जब अपन होमोफोन्स पढ़ेंगे तब एक और स्पेलिंग पढ़ेंगे अकम्प्लिश की. ये अकम्प्लिश है और दूसरा वर्ड होता है अकम्प्लिस, ACCMPLICE. अकम्प्लिस मीन्स टू सपोर्ट समवन इन क्राइम, ACCOMPLICE. अकम्प्लिश मीन्स टू सपोर्ट समवन इन क्राइम. ठीक है, लेकिन ये अकम्प्लिश है. मूवीज देखिए ना, मिशन इम्पॉसिबल, लास्ट में लिखा आता था मिशन अकम्प्लिश्ड. यस, अकम्प्लिश मीन्स to succeed in doing or completing something, to succeed in doing or completing something. She accomplished her goal despite setbacks. She accomplished her goal despite setbacks. उसने अपने गोल को अपनी परेशानियों के बावजूद भी पूरा कर दिया. क्लियर? अचीव, रीच, फुलफिल, attain, gain. Achieve, reach, fulfill, attain or gain. Clear? Got this? अब एंटोनिम्स देखते हैं कुछ. फेल, एवरीबॉडी नोज. गिव अप माने छोड़ देना, माने हार जाना. फॉल से छोड़ देना. अब थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा पॉज लेते हैं एंड देन वी टॉक. कि दोस्त, अभी जो वर्ड हमने पढ़े सच बताइए, क्या टफ थे? बिल्कुल ऑनेस्ट बताइए, क्या टफ थे? नो. तो फिर हम क्यों नहीं करते थे? बिकॉज वी फील कि हमें वर्ड को रटना है, हमें उसका रट्टा मारना. वी नीड टू मग अप. नो, दिस इज अवर मिसकंसेप्शन that we need to mug up the words if we want to remember them. No, try to use them. Try to use them in your day-to-day life. Like if I say, okay, well, my professor gave me some task and I really accomplished it. I am happy to accomplish that task. Okay, word use. I'm happy to complete that task. I'm happy to fulfill the promise. So that is accomplish. Accomplish word clear है? Pronunciation ध्यान रखना. Accomplish. जब बोलते नहीं बने ना तो बोलो. हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ नहीं है. That is accomplish. Let us go for the next. Oh, what is it? पिगी बैंक. पिगी बैंक में क्या कर रहे हैं भाई? सिक्के, नोट, डॉलर इकट्ठे किए जा रहे हैं. व्हाट इज द वर्ड फॉर इकट्ठा करना? कैन एनीबॉडी से? कलेक्ट. बिल्कुल, एक पहला जो वर्ड आपने यूज किया वो बिल्कुल सही किया आपने, कलेक्ट. और क्या हो सकता है? एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट. आज जितने भी हमने आपको वर्ड देने वाले ना, ये दे ऑल आर स्टार्टिंग विद ए. ए की सीरीज दे रहे हैं अभी हम. कुछ आपके यहाँ कुछ वर्ड ए से जुड़े हुए दे रहे हैं. एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना. जैसे आपने सुना होगा कि द एक्यूमुलेशन ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स. जो
आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, दे से इट्स रियली वेस्ट टू accumulate द वर्ल्डली थिंग्स। ठीक है, उनके हिसाब से जो वो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। नोबडी इज रॉन्ग एक्चुअली, एवरीबडी इज राइट एट देयर स्टेट और एट हिज स्टेट। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर सही है। ठीक है, accumulate, collect in one place, especially growing to large number or quantity. We have accumulated a great amount of evidence. हमने बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। We have accumulated a great amount of evidence. Clear? Pile up, collect, amass, gather. Pile up, collect, amass और gather. क्या वर्ड था? accomplish. सिनोनिम क्या हो गए? pile up, collect, amass और gather. pile up means ढेर लगा लेना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह यूज हो सकते हैं वर्ड्स, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द सिनोनिम्स। अब अपोजिट क्या होगा, या एंटोनिम क्या होगा? स्कैटर माने बिखरा देना, डिस्पर्स फैला देना, डेसिपेट, डेसिपेट मींस इधर उधर तितर बितर कर देना, स्प्रेड फैला देना। जैसे हम कहें कि he has piled up the coins, उसने सिक्कों की एक ढेरी बना ली, and his youngest son came and scattered all the coins here and there, or dispersed all the coins here and there, or dissipate all the coins here and there, or spread all the coins here and there. आ गया? फैला देना, बिखरा देना, तितर बितर कर देना। Clear? Got the word? Sure? Okay. ये क्या है भाई? एक सिंहासन है, सिंहासन पे मुकुट रखा हुआ है और वो व्यक्ति छोड़कर जा रहा है। छोड़ दिया उसने, त्याग दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसने अपना सिंहासन या उसने अपनी पोस्ट को त्याग दिया है। एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप राइट्स, अपने अधिकारों को छोड़ देना। टू अ थ्रोन, पावर और एनी हाई पोजीशन, काहे के लिए अपने अधिकारों को छोड़ देना? किसी सिंहासन से, मैंने राज्य से अपना अधिकार छोड़ देना, शक्ति से अपना अधिकार छोड़ देना, किसी हाई पोजीशन से अपना अधिकार छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है? Nawaz Sharif was forced to abdicate his chair. If you remember, परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को उनका पद छोड़ने के लिए फोर्स कर दिया था। तो नवाज शरीफ was forced to abdicate his chair. Chair means post, the post of the prime minister. नवाज शरीफ कौन था? Mohan, I don't expect this thing, huh? You must be well aware of the worldly happening or what is happening in the countries around you. थोड़ा सा अपडेशन लेकर आने की जरूरत है। नवाज शरीफ was the Prime Minister of Pakistan. Yes, even before Imran Khan, he was the Prime Minister of Pakistan. Nawaz Sharif was forced to abdicate his chair. Resign, renounce, leave, quit. Clear? Resign. अब अपोजिट क्या हो जाएगा? सीज माने अपने कब्जे में कर लेना, रिटेन माने बनाए रखना, असर्ट, असर्ट नॉर्मली हड़पने के लिए यूज होता है कि उसने सत्ता को हड़प लिया। असर्ट, देखो असर्ट यदि हम मीनिंग के साथ चलें तो फंडामेंटल मीनिंग तो असर्ट का यही होता है, हड़प लेना,
और कैन से अपने कब्जे में कर लेना, सीज, कब्जा कर लेना, बंदी बना लेना, रिटेन, अपने कब्जे में बनाए रखना। जैसे हमने कहा he need to retain the lead if he wants to win the election. यदि वो इलेक्शन जीतना चाहता तो उसे अपनी लीड को रिटेन करना होगा, दैट इज रिटेन। लेकिन असर्ट मींस हड़प लेना। Oh my God, what they are doing? तुम तो कभी ये लाइफ में आपने भी महसूस किया होगा, हर व्यक्ति उंगली उठाने लगता है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया था, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड यू फील कि यार रियली जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यस, दिस इज द वर्ड अबाश। अबाश मीन्स होता है शेम और एम्बैरेसमेंट। अबाश, try to speak of the word abash. ये अबास नहीं है, it's abash. Abash, clear? Abash, shame or embarrassment. He was abashed at feeling of his friend's remarks. थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है, इसको हमें करेक्शन किए देते हैं तुरंत। तो बेसिकली वहां पर जो एरर थी वो यदि आपने ध्यान दी हो तो एरर ये थी कि देयर apostrophe s is needed and I did not use. Let me correct it. Now it is correct. He was abashed at feeling of his friend's remarks. अपने दोस्त के रिमार्क्स की पर उसे या उसकी सोच, दिमाग जो सोच थी उस पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। Disconcert, face, embarrassed, red-faced or ashamed. He was ashamed. उसे शर्मिंदा कर दिया गया। Like if you, it happens sometimes कि आपका you wanted or you claim that you will be just topping everywhere, and if you do not, then somebody comes and says कह तो बड़े रहे थे कि टॉप करोगे, नहीं कर पाए, so you feel a bit embarrassment, आप अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, that is called abash. वर्ब है ना। एंटोनिम क्या हो गया? एनकरेज, एम्बोल्डन, cheer, soothe, relieve. तो देखो यदि हम वर्ड्स के साथ चले तो बहुत आसान थे ये सभी वर्ड्स, केवल यदि छोटी सी प्रॉब्लम कोई थी तो वो ये थी कि हम यूज नहीं करते उन्हें, एंड दैट्स व्हाई वी फील दैट दे आर सो एलियन। एक और नया वर्ड मिल गया भाई आपको, एलियन। एलियन डज नॉट मीन कि वो जो दूसरे ग्रह से आते हैं, एलियन मीन्स जिनके बारे में आपको जानकारी ना हो, यू फील they are the stranger for you, so they are alien. Clear? Hope आज आपने जो पढ़ा आपने एंजॉय किया, और रियली यदि आपने एंजॉय किया है दोस्त तो आई विल से टू एवरीवन कि अपने इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उस नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा या बेल आइकन पे जाके क्लिक करना होगा। So well friends, hope you enjoyed today's class, and I will be doing my best to bring these
or very useful words for you so that you can use them in day-to-day life. हमें इनमें से कोई भी फैंसी वर्ड नहीं लाए हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम कोई फैंसी वर्ड ना लाएं, लेकिन वो वर्ड लेकर जरूर आए जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एंड दे आर नीडेड फॉर यू टू improve your communication skills, to improve your language, to improve your English. Clear? So by the time, have a very good day. Enjoy yourself. Keep on learning, keep on studying. Bye. Good night.